ایک ایسا نبی جسے اللہ نے ایسی سلطنت دی جو کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ میں ہوں سلیمان جسے اللہ نے جنوں اور ہواؤں پر حکومت دی۔ ایسا نبی جو مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے، جس کا حکم جنات نوکروں کی طرح مانتے تھے۔ اس نبی کا نام تھا سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن باقی بچوں کی طرح نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا بچپن بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے کورٹس اور اللہ کی عبادت کرنے میں گزارا۔ وہ کورٹس میں اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کے کیسز دیکھتے تھے، جہاں سے انہوں نے شریعت کے مطابق انصاف کرنا سیکھا۔ وہ اپنے والد کو دیکھ کر سیکھتے تھے۔ ایک دن دو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا کیس لے کر آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، اس کی بکریاں میرے کھیتوں میں گھس کر ساری فصل کھا گئیں، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے انسان کی ساری بکریاں اس کھیتوں کے مالک کو اس کے نقصان کے بدلے ہمیشہ کے لیے دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، آپ اسے بکریاں ہمیشہ کے لیے مت دیں، بلکہ کچھ وقت کے لیے دیں، تاکہ جس کی فصل کو نقصان ہوا ہے وہ بھی اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کا نقصان پورا ہو سکے۔ یہ بڑا ہی کمال کا سولوشن تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اس سولوشن سے کافی امپریس ہوئے اور یہی سے انہیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی اچھے سے کیسز حل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ہم نے سلیمان کو معاملے کی سمجھ عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد سے سیکھنے لگے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کورٹس کے کیسز حل کرنا سیکھنے لگے اور حکومت کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ جیسے ایڈمنسٹریشن اور پریشر میں ڈیسیژن میکنگ سیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمال کے واریر بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی سے فوج کو مینج کرنا سیکھا۔ جب وہ اپنے والد کو رات دیر تک عبادت کرتے دیکھتے تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے، اور اس طرح اللہ نے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تربیت دی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور اس دن سورج کی دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ لوگ دھوپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم پر رحم کر۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر بادل کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اب ان کا امپائر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ نے انہیں نبوت نصیب کی۔ وہ اس وقت کافی نوجوان تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی دعا کی جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کی نہ ہو۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت دی۔ اللہ نے ہواؤں کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ہواؤں کو کنٹرول کرنے لگے، اور ایسا سفر جسے کرنے میں مہینے لگ جاتے تھے وہ ایک دن میں کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں جنات پر حکومت دی۔ جنات نوکروں کی طرح ان کے حکم مانتے تھے اور ان کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کی طاقت دی۔ وہ پرندوں سے بات کرتے تھے اور ان کی باتیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو ملا کر ایک فوج بنائی جس میں جانور، جنات اور انسان شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ان طاقتوں سے اپنا امپائر بڑھانے لگے۔ وہ ہواؤں سے اپنی فوج اور سپلائی کو بہت جلد ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ اور جنات کے ذریعے بڑی بلڈنگز اور محل بنوانے لگے
जो कि इंसानों के लिए बनाना इम्पॉसिबल था। जैसे ऐसे पत्थर उठाना जो इंसानों के लिए पॉसिबल ही न हो। एक दिन वो चूंटियों की वादी के पास से अपनी फौज के साथ गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने एक चूंटी की आवाज सुनी जिसने कहा, ऐ चूंटियों, अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें कुचल न डालें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर अपनी फौज के साथ चूंटियों की इस वादी की तरफ गए और उन्हें देखकर चूंटियां डर गई और एक दूसरे को भागने का कहने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इन्हें ये ताकत दी कि वो इनकी जुबान समझ सकते हैं। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंस्पेक्शन कर रहे थे, तभी इन्हें पता चला कि इनकी फौज में से हुदहुद परिंदा काफी टाइम से गायब था। उन्होंने हुदहुद को बुलाया और इससे पूछा, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? हुदहुद ने कहा, मैंने एक ऐसी बादशाहत देखी जिसकी हाकिम एक मलका है जिसका नाम बल्कीस है, जो कि एक अमीर और पावरफुल औरत है जिसका तख्त बहुत बड़ा है और इसके पास काफी बड़ी फौज है और इसके लोग सूरज की इबादत करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उन्होंने मलका बल्कीस को हुदहुद के जरिए एक खत भेजा। हुदहुद इस खत को लेकर निकला और सफर करते हुए मलका बल्कीस के महल में पहुंचा और मलका बल्कीस को यह खत दिया। मलका बल्कीस ने जब यह खत खोला तो इसमें लिखा था, ऐ मलका, मैं तुम्हें खुद को अल्लाह के हवाले करने की दावत देता हूँ। जुल्म मत करो और मेरे पास आओ। मलका बल्कीस ने ये खत अपने सारे एडवाइजर्स के सामने पढ़ा। कुछ एडवाइजर्स ने कहा, इस बादशाह की बात मत माने और उसके खिलाफ जंग की तैयारी करें। जबकि कुछ ने कहा, एक बार आप इस बादशाह से मिलकर देख लें। मलका बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये गिफ्ट्स नहीं लिए और कहा, मेरा ईमान खरीदा नहीं जा सकता। मलका बल्कीस इससे काफी इम्प्रेस हुई और जान गई कि ये कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसे दुनिया की तलब हो। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने का प्लान बनाया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मलका बल्कीस इनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इनका तख्त इनके आने से पहले अपने महल में ले आएं, ताकि वो मलका देखकर हैरान हो जाए और जान जाए कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन मलका बल्कीस का ये तख्त यमन में था, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे सामने ला सकता है? तभी एक बड़ा जिन सामने आया और इसने कहा, मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले वो तख्त आपके सामने ला दूंगा। तभी एक और इंसान सामने आया जिसे अल्लाह ने कुछ खास इल्म दिया था। मैं ये तख्त आपकी आंख बंद होने से पहले आपके सामने ला दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी इसकी ये बात सुनी ही थी कि इनके सामने वो तख्त पेश भी हो गया। फिर मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आई। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल, इनकी जिन्नात और जानवरों की फौज को देखा और ये देखकर हैरान हो गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके तख्त के पास ले गए और कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? उन्होंने कहा, हाँ ये वही है। वो ये सब देखकर फौरन कहने लगी, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मैं खुद को सुलेमान के रब के हवाले करती हूँ। और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर जंग किए इन्हें मुसलमान कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को भी एक्सपैंड किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से एक स्ट्रक्चर का नक्शा बनाया जहां हजारों लोग एक टाइम में आ सकें, और फिर अपने सारे जिन और इंसानों को इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। फिर एक मस्जिद बनाई
जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने एक दिन आजमाइश डाली। एक दिन दोपहर के वक्त कुछ घोड़े उनके सामने आए जो कि काफी खूबसूरत थे और ये घोड़े उनकी रियासत के कामों के लिए यूज होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और नमाज का वक्त भी गुजरने लगा। तभी उन्हें अचानक याद आया और उन्होंने कहा, इन घोड़ों की मोहब्बत ने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। उन्होंने फौरन तौबा की और इन घोड़ों को अपने सामने से हटा दिया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोजाना अल्लाह की इबादत करते रहे और इतनी बड़ी बादशाहत होने के बावजूद भी वो कभी गुरूर नहीं करते थे और इसे अल्लाह की तरफ मंसूब करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना छोड़ दिया और इंसाफ से हुकूमत करने लगे। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और इनके सामने जिन बिल्डिंग बना रहे थे, तभी अल्लाह ने इनकी रूह कब्ज कर ली। वो अपनी लाठी के सहारे यूं ही खड़े रहे और जिन आराम से काम करते रहे। काफी टाइम गुजर गया और फिर एक दीमक ने इनकी लाठी खाना शुरू कर दी। जब वो लाठी टूट गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर जा गिरे और तब जिनों को पता चला कि इनकी मौत हो गई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद इनके तख्त के नीचे से लोगों को कुछ किताबें मिली जो कि जादुई किताबें थी जो शैतान ने छुपा दी थी ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे, सुलेमान तो ये सब जादू से किया करता था, वो कोई नबी नहीं था। लोग इन किताबों से जादू करने लगे। लोग अल्लाह को छोड़कर अजीब चीजों पर यकीन करने लगे और कहने लगे, ये सुलेमान का इल्म है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। जबकि वो कुछ खास इल्म नहीं था। तभी अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। ये दोनों फरिश्ते इन लोगों के पास आए और कहा, हमारे पास जादू का इल्म है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम काफिर हो जाओगे। तो जिन लोगों के दिलों में मुनाफिकत थी वो इनसे कहते, आप हमें ये जादू सिखा दें, हमें भी तो पता चले। हारूत और मारूत इन्हें बताते कि जादू कैसे काम करता है और फिर वो लोग इसका यूज अपने मतलब के लिए करने लगे। वो इसे बदला लेने के लिए यूज करते, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से ये जादू कुछ ही लोगों पर काम करता था और यूं ब्लैक मैजिक का आगाज हुआ। कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चूंटियों के पास से गुजर रहे थे तो चूंटियां एक दूसरे को वार्न करने लगी कि सुलेमान की फौज आ रही है, पीछे हट जाओ। इससे ये पता चलता है कि चूंटियां आपस में एक दूसरे से बातें भी करती हैं। ये बात पिछली सदी में ही डिस्कवर हुई है कि चूंटियां वाइब्रेशनल सिग्नल्स और फिरोमोन्स के जरिए एक दूसरे से बातें करती हैं। लेकिन कुरान में ये बात आज से 1400 साल से ज्यादा पहले बता दी गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनके ये सिग्नल समझ लिए थे। इसी तरह हुदहुद परिंदे ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की खबर दी और इनके एम्पायर की लोकेशन भी बताई थी। साइंस ने ये भी डिस्कवर किया है कि परिंदों में एक कॉम्प्लेक्स वोकल सिस्टम होता है और वो जगहों को भी बहुत अच्छे से याद रखते हैं और एक दूसरे को खतरे से खबरदार भी करते हैं। ये बात भी हमें कुरान से पता चलती है जब साइंस को भी इसका इल्म नहीं था। इसी तरह कुरान में बताया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को भी कंट्रोल कर सकते थे और ऐसा सफर जिसे करने में कई महीने लग जाया करते थे वो एक दिन में कर लेते थे। साइंस ने ये बात कई सदियों बाद जाकर डिस्कवर की है कि हवा अर्थ रोटेशन और प्रेशर पर डिपेंड होती है और आज इंसान इसी एयरफ्लो को मैनिपुलेट करके उड़ते हैं और इसी हवा से एनर्जी भी पैदा करते हैं। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के पैटर्न को चेंज करके सुपरसोनिक स्पीड से सफर करते थे।
इसी तरह कुरान में आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े मौत आ गई और वो उस वक्त तक नहीं गिरे जब तक दीमक ने इनकी लाठी को खाना शुरू नहीं कर दिया। आज मॉडर्न साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से इंसान की अचानक मौत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह का लाइफस्टाइल हर मुसलमान को अपनाना चाहिए? इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप गुर्बत में जिंदगी गुजारें, बल्कि गुर्बत इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। इंसान अपना पेट पालने के लिए चोरी और धोखेबाजी तक करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ पैसे से ताकत आती है और इससे इंसान दूसरों की भी मदद कर सकता है। आज यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत इनकी दौलत ही है और हम गरीब होकर इनका कुछ नहीं कर सकते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी शानदार सल्तनत के जरिए मलका बल्कीस को मुसलमान कर लिया। इसीलिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि दुनिया में नेक काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी सारी दौलत के बावजूद भी कभी इस दौलत से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि यही कहते थे, ये मेरे रब की तरफ से आजमाइश है। और इस अजीम सल्तनत को अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे। जो दौलत आपको गुनाहों की तरफ ले जाए वो अजाब है, और जो नेक कामों की तरफ ले जाए वो निमत है। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह की रिजा के लिए एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे, वो भी दौलत होने के बावजूद, तो ये सबसे बेहतर है। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी। आपके पास भी खैबर की जंग के बाद काफी बाग आ चुके थे, लेकिन आप इन सब को नेक कामों में यूज करते थे और खुद सादा जिंदगी गुजारते थे, और यही सबसे बड़ी नेकी